Good morning, students. Today, I am going to take up a lesson from the 12th standard textbook. In 12th standard, we have two textbooks. The first one is Flamingo, which contains the prose section, and the other book, the supplementary reader, is Vista. Altogether, we have around a few lessons in both of the books. Today, we are going to start the lesson from Flamingo. The name of the lesson is The Last Lesson by Alfonso Daudet. Now, when we talk about Alfonso Daudet, we come to know he was born in the year 1840 and he died in 1897. He was a French novelist and short story writer. Now, The Last Lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. Now, this Franco-Prussian War, it started in 1870 and ended in 1871. Now, during the war, what happened was France was defeated by Prussia, and which was led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. So, what we find here, Germany defeated France, and two districts of France, that is Alsace and Lorraine, both passed into Prussian hands. And now Germany had taken over the territory of these two districts, Alsace and Lorraine. Now, what is this meaning? What the story deals with? The story here deals with the theme of language imposition. Language imposition mane kya? Learning of German instead of French. Because Germany had captured both the places, now it had put a regulation that all the people in Alsace and Lorraine, they had to learn only German, and French would not be taught anymore in schools. So the story deals with language imposition and language loyalty. French people are loyal to the language and they want to learn only French. But because Germany has taken over these two places, they are asking the nation now to learn only German. Germany wants German in schools, whereas the people of France want to learn French, which is no longer possible in these two districts of Alsace and Lorraine. The story highlights the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language. So now onwards, the people of Alsace and Lorraine will have to learn only German, and they cannot speak anymore in French, and they will not be able to learn French, which was their actually national language. So this is about the story here, and this is about Alfonso Daudet. So Alfonso Daudet was a really good short story writer. He also wrote many French novels. And let us proceed with the story now. I started for school very late that morning. Now, in the story, we have a small child who is studying in the school of Alsace and Lorraine. And his name is Franz. And he is a student who doesn't like to learn things like most students. But some of you are really good at learning. Now, Franz did not like school because his teacher is M. Hamel. M. Hamel is the French teacher in the school. And he does not like the French teacher because the French teacher always asked him questions on participles. And he was ignorant about them. He never learned anything properly. And he did not even know the P of participles. So he did not like to go to school. So he started going to school that day very late. And he was afraid and was in great dread of a scolding. He was afraid now that Mr. M. Hamel would scold him very much because he did not learn the participles well that day. M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment,
I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. Now, what happened to Franz? फ्रांस न्यू ही हैड टू गो टू स्कूल टुडे और उसको पार्टिसिपल्स पर टेस्ट करा जाएगा एंड ही न्यू दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स सो उसको अच्छी से हेमल जो टीचर है ही वुड स्कोल्ड हिम अलॉट. तो उसने बाहर की दुनिया देखी, स्कूल के बाहर की दुनिया. तो वहाँ पर एक अच्छा सा जंगल जैसा था. देयर वर सो मेनी बर्ड्स देयर. इट वाज वार्म, ब्राइट था एकदम, और इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन द वुड्स यहाँ माने जंगल. और एक ओपन फील्ड थी, वहाँ पर एक सॉ मिल था और वहाँ पर प्रुशियन सोल्जर्स अपना ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे. एंड एवरीथिंग वाज सो इंटरेस्टिंग दैन गोइंग टू स्कूल. पर उसको लगा कि नहीं, मुझे स्कूल तो आज जाना ही पड़ेगा, और वो स्कूल की तरफ भाग कर जाने लगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. So एक टाउन हॉल एक जगह थी वहाँ पर, और वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था. और उसने देखा कि उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officers, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो जब उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, भीड़ है, ही हैड सीन कि 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा बैड न्यूज़ ही छपती रहती थी. कोई ना कोई इस बुलेटिन बोर्ड पर बैड न्यूज़ लगाता रहता था. और उसमें बैड न्यूज़ कौन कौन सी थी? जो बैटल्स फ्रांस ने लूज़ कर दिया, कोई ड्राफ्ट से, कोई ऑर्डर्स थे कमांडिंग ऑफिसर्स का. कभी भी बुलेटिन बोर्ड पर 2 साल से अच्छी खबर कभी मिली ही नहीं थी. तो उसको लगा आज बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो आज व्हाट कैन बी द मैटर. ही वॉज रियली सरप्राइज्ड कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Hup. You'll get to your school in plenty of time." तो क्या हुआ वहाँ पर, जैसे ही वो बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरा तो उसने देखा वहाँ पर एक आदमी था, वॉचर, और वो एक ब्लैक स्मिथ था. ब्लैक स्मिथ माने जो आयरन का काम करता हो, एंड उसके साथ उसका अप्रेंटिस भी था, another person of with him who works with him. और दोनों बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे, वॉचर और उसका अप्रेंटिस. और फिर वॉचर ने फ्रांस से बोला, अरे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, आराम से जाओ. तो फ्रांस वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों बोल रहे हो. नहीं तो नेचुरली जब कोई लेट होता है स्कूल के लिए तो सब कहते हैं चलो चलो जल्दी जाओ. सो टुडे ही इज़ गोइंग वेरी स्लो, सो ही वॉज लाइक सरप्राइज्ड व्हाई वॉचर टोल्ड हिम आराम से जाओ. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो फ्रांस को लगा कि वॉचर शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं हमेशा ही लेट रहता हूँ. और फिर वो दौड़ता हुआ एम हेमल जो उसका फ्रेंच टीचर था, उसका एक छोटा सा गार्डन था स्कूल के बाहर, तो वहाँ तक वो पहुँचा. और ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ माने अब उसको सांसें नहीं ली जा रही थी क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर आया हुआ था. Usually when schools began, there was a great bustle which could be heard out in the streets. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hemmel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो क्या हुआ, जब भी स्कूल चालू होता
तब स्कूल में बहुत सारी आवाज़ें आती रहती और बहुत सारा शोर मचता रहता, और सब बच्चों की जो भी रिसाइटिंग थी, बच्चे अपने लेसन्स को एक साथ पढ़ते ज़ोर से, तो उसकी रिसाइटिंग कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड। और इतना लाउड था कि बहुत बार इतनी ज़ोर ज़ोर से बच्चे पढ़ते कि सबको अपने कान पर हाथ रखना पड़ता, और जो टीचर था उसका जो रूलर था वो एक साउंड टीचर अपना रूलर टैप करता टेबल पर, तो एक रैपिंग साउंड वहाँ पर सुनाई पड़ती। और इस सब शोरगुल में फ्रांस चुपचाप क्लास के अंदर घुसकर अपनी जगह पर बैठ जाता था। बट नाउ व्हाट हैपन टुडे? आज सब लोग एकदम चुपचाप बैठे थे। देयर वॉज नो साउंड। ऐसा लग रहा था संडे है, कोई स्कूल में है ही नहीं। और उसने सोचा आज क्या हॉलीडे है क्या? फिर उसने देखा विंडो से, तो उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह पर थे और एम हेमल अपने रूलर के संग क्लास के अप डाउन चल रहे थे। एंड अब उसको डर लग गया कि अब क्या होगा, मुझे सबके सामने क्लास में जाना पड़ेगा। और वो ब्लश करने लगा एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी फ्राइटेंड। उसका मुंह पूरा लाल हो गया डर के मारे, और ही वॉज लाइक थिंकिंग अब मैं कैसे चलूँगा अंदर, एम हेमल को पता चल जाएगा। सो बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो जैसे ही एम हेमल ने देखा फ्रांस को, उसने बोला चलो चलो जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, अगर तुम नहीं आते तो हम लोग शायद लेसन अभी स्टार्ट कर लेते। तो फ्रांस एकदम सरप्राइज हो गया। एम हेमल जो इतना स्ट्रिक्ट टीचर था, आज उसको क्या हो गया, आराम से बात कर रहा है और बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो वो जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered, then that he never wore except on inspection and prize days. एट लास्ट फ्रांस जल्दी से जाकर अपने सीट पर बैठा। थोड़ा सा उसकी हार्ट बीट कम हुई, जो डर के मारे बढ़ गई थी। तब उसने देखा कि एम हेमल ने एक बहुत अच्छी सुंदर कपड़े पहने हुए थे। एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, उसकी शर्ट वो फ्रिल्ड वाली शर्ट पहने हुआ था जो उस ज़माने के लोग पहनते थे। एंड देयर वाज अ स्मॉल ब्लैक सिल्क कैप, वो भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड कैप एम हेमल ने पहना हुआ था। जब एम हेमल ये वाले कपड़े कब पहनता था? जब कोई स्पेशल डेज़ होते, लाइक प्राइज डेज़ या इंस्पेक्शन डेज़, तभी वो इतने सुंदर कपड़े पहनता। अदरवाइज ही यूज्ड टू वेयर द रेगुलर स्कूल क्लोथ्स ओनली। सो पहले ही फ्रांस को सरप्राइज़ मिल गया था कि स्कूल पूरा क्वाइट था। उसका नेक्स्ट सरप्राइज़ था कि एम हेमल ने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। सो ही वॉज थिंकिंग कि हो क्या रहा है। नाउ besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everyone looked sad, and Hosser had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो ये सरप्राइज़ के बाद तीसरा सरप्राइज़ क्या था फ्रांस के लिए? जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसने देखा पीछे बैक बेंचेस पर बहुत सारे उसके विलेज के पीपल वहाँ बैठे हुए थे, जो ऑलरेडी स्कूल छोड़कर चले गए होंगे, ऐसे लोग ऑलरेडी थे वहाँ पर। उसने देखा जो ओल्डर पीपल थे स्कूल में, उसके जो विलेज में जो ओल्डर पीपल थे। ओल्ड हॉसर एक आदमी था, ही वॉज एन ओल्ड मैन। उसने एक हैट पहना था 3 कॉर्नर वाला। और फॉर्मर मेयर, जो मेयर ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए थे, वो भी वहाँ बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराने जो पोस्ट मास्टर जो रिटायर हो चुके थे, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और सबका मुँह बहुत ही सैड लुकिंग था। और जो ओल्ड मैन हॉसर था, वो उसके पास एक ओल्ड प्राइमर माने एक टेक्स्ट बुक जैसी चीज़ उसके पास थी। और वो प्राइमर इतना पुराना था कि जो एंजेस थे उसमें पूरे पेजेस रिंकल्ड थे। और वो प्राइमर उसने अपने नीज़ पर रखा हुआ था। एंड उसके साथ उसके स्पेक्टिकल्स भी वहाँ पड़े हुए थे। और सबका मूड बहुत ही सैड था। अब फ्रांस को पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई एवरीवन इज़ सो सैड। While I was wondering about it all, M. Hemmel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children,
This is the last lesson I shall give you. This order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो अब पता चला कुछ फ्रांस को। एम हेमल ने एक बहुत ही जेंटल वॉइस में बोला कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। और ये आज जो मैं लेसन दे रहा हूँ तुमको फ्रेंच का, दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट लेसन टू यू टुडे। अच्छे से सुनो और एकदम अटेंटिवली सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। जैसे ही फ्रांस ने सुना कि अब से उनको कभी फ्रेंच मीन्स पढ़ाएगा नहीं कोई भी और ये लास्ट लेसन है, उसके सर लाइक ईयर्स पे जैसे बिजली गिर गई हो। थंडर क्लैप, सी द वर्ड्स देयर, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। जैसे कि थंडर गिर गई हो उसके ऊपर, इस तरह से जैसे बिजली गिर गई हो उसके ऊपर वो वर्ड्स थे। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे ऐसे थंडर क्लैप इस तरह से मुझे सुने। जैसे हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमें कोरोना की वजह से घर में बैठना पड़ेगा इतने दिन। और understood all of you? So that same, like a thunderclap for us, like this only, it was a thunderclap for him. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. अब उसको समझ में आया टाउन हॉल के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी थी। और उन लोग ने इस तरह का एक ऑर्डर वहाँ पर लगाया था कि अब से एल्सस एंड लॉरेन में के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच जो एक्चुअली उसका नेशनल लैंग्वेज था वो अब से नहीं पढ़ाया जाएगा। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो पहली बार फ्रांस को पता चला कि उसने कभी भी फ़्रेंच लेसन्स को कभी इंटरेस्ट से पढ़ा ही नहीं था। उसको फ़्रेंच ठीक से कभी आती ही नहीं थी। उसने फ़्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही लाइटली लिया था और उसको अब पता चला अब उसको फ़्रेंच पढ़ना ही नहीं है अब से। सो ही वॉज़ वेरी लाइक सरप्राइज किया और ही वॉज़ एंग्री विथ हिमसेल्फ ऑल्सो कि मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और मैंने फ़्रेंच नहीं पढ़ा जो कि हमारा नेशनल लैंग्वेज है। एंड वो बहुत सॉरी था कि ही वॉज़ नॉट एबल टू लर्न हिज लेसन्स। और बहुत बार वो क्या करता, स्कूल जाने की जगह पर वो कोई बर्ड्स की नेस्ट में चला जाता और वहाँ उनके एग्स को निकाल लेता और कभी कभी वो स्लाइडिंग करने चला जाता और ऐसे बहुत सारे काम करता जो नहीं करने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग फ्रेंच। सो ही वॉज़ वेरी एंग्री विथ हिमसेल्फ कि मैंने कभी भी फ्रेंच भाषा पर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड टुडे देखो क्या कंडीशन है कि मैं फ़्रेंच अब से हमको पढ़ना ही नहीं है। अभी तक उसकी जो बुक्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको एक न्यूसेंस लगती थी उसकी बुक्स और इतने हैवी होती थी उसकी ग्रामर बुक्स। अब उसको वो बुक्स बहुत प्यारी लगने लगी और उसको लगा कि ये सारी मेरी ओल्ड फ्रेंड्स बन जाएंगी ये बुक्स मेरी, और इनको मैं कभी भी पस्ती या रद्दी में नहीं दे सकता। आई हैव टू कीप इट विद मी बिकॉज एक्चुअली सब लोग को अपने कंट्री का जो नेशनल लैंग्वेज है उससे तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है। सो ही वॉज़ वेरी सैड विथ हिमसेल्फ। And M. Hemmel too had the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो M. Hemmel को भी मालूम पड़ गया कि आज उसको लास्ट लेसन देना है और अब से वो और उसको छोड़ के जाना भी है। ही हैड टू लीव द प्लेस एंड गो अवे बिकॉज फ्रेंच टीचर्स वर नो मोर रिक्वायर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। तो आज उसका लास्ट लेसन देने के बाद एम हेमल को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। एम हेमल को भी पता था और फ्रांस को भी पता था। और जब उसको लगा कि एम हेमल आज से from now onward he is going to go away, he forgot all जो भी जब तक उसको जो मार पड़ी थी एम हेमल ने जो उसको मारा था वो सब वो भूल गया और उसको आज एम हेमल बहुत ही अच्छे और प्यारे लग रहे थे वो उनके टीचर। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too.
that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. So, अब उसको पता चला फ्रांस को, लिटिल फ्रांस को, कि पीछे के बेंचेस पर क्यों सारे ओल्ड मैन विलेज के आकर बैठे हुए हैं. इट वॉज जस्ट दैट उनको भी अपनी कंट्री से बहुत ही प्यार था, उनको अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार था, और वो रिस्पेक्ट की वजह से आज इस लास्ट लेसन को अटेंड करने आए हैं. दे वर गिविंग रिस्पेक्ट टू एम हेमल एंड ऑल्सो टू द नेशनल लैंग्वेज. When I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो अचानक से जब क्लास चल रही थी, एम हेमल ने फ्रांस का नाम बुलाया, फ्रांस ऐसे. और फ्रांस को पता था कि उसका चांस आ गया पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलने के लिए, जो रूल्स होते हैं. एंड नाउ उसको वैसे भी पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ ज़्यादा आता नहीं था, फिर भी उसने सोचा जितना मुझे आता है मैं ज़ोर से, लाउडली और क्लियरली बोलूँगा और एक मिस्टेक के बगैर बोलूँगा. पर जैसे ही उसने ही हैड टू स्टैंड अप इन हिज प्लेस, उसने स्टार्ट किया, तभी उसके वर्ड्स में सारा मिक्स हो गया पार्टिसिपल्स के, और एकदम वो चुप हो गया. उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, बिकॉज एवरीबडी वॉज सिटिंग इन द क्लास, इवन द एल्डर्स वर सिटिंग एंड एम हेमल वॉज देयर. और उसने अपना मुंह नीचे कर लिया क्योंकि उसको डर लग रहा था ऊपर देखने के लिए. ही वॉज वेरी सैड, बिकॉज अब उसको इस बात का डर नहीं था कि उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते, अब उसको इस बात का गम था कि ही डिड नॉट नो द पार्टिसिपल्स. जितने कितने साल से एम हेमल उसको कुछ ना कुछ पढ़ा रहे थे, एंड ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग. ही वॉज अपसेट विथ हिमसेल्फ कि अब मुझे कुछ आता नहीं है और अब से मैं ये फ्रेंच लैंग्वेज कभी पढ़ भी नहीं पाऊँगा. I heard M. Hemmel say to me, I won't scold you, little France. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say, How's it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो उसने क्या बोला कि उसने फ्रांस से बोला, देखो मैं तुमको आज डांटने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हें अपने आप से ही यू आर फीलिंग बैड इनफ. और अब तुमको पता चला कि तुमने रोज़ सोचा मैं कल लर्न करूँगा, और कल पर टालते गए चीज़ें, और आज तुम्हें लेसन के बारे में या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और तुमने सोचा था कि तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो फ्रेंच लर्न कर लोगे. पर आज देखो ऐसा टाइम आया है कि अब हम लोग ना, बहुत सारे लोगों को अच्छी से फ्रेंच बोलना भी नहीं आता और उसमें लिखना भी नहीं आता. सो हम लोग सब अपने आप को रिप्रोच माने स्कोल्ड करना, अपने आप को सब लोग डांटो कि ये हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि तुम उसके लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल हो. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. How I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो एम हेमल ने बोला, देखो सब तुम्हारी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है. बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, वो लोग तुम लोग को अच्छी से गाइडेंस नहीं देते हैं कि ये लर्न करना चाहिए. वो सोचते क्योंकि ये एल्सस और लॉरेन वे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, सो ऑल द पीपल वेर फार्मर्स, मोस्ट ऑफ देम ओवर देयर. तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी फार्म में उनके संग काम करें या मिल पर उनके संग काम करें, तो उनको थोड़ा सा और पैसा कमा ले वो पेरेंट्स. और बहुत बार एम हेमल ने भी फ्रांस को अपने गार्डन में फ्लावर्स में पानी डालने के लिए, वाटरिंग करने के लिए भेजा था. और कभी कभी एम हेमल को फिशिंग करने जाना था, उस दिन वो सबको क्लास की हॉलीडे कर देते. तो सब लोग कोई ना कोई तरह से जिम्मेदार हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज ठीक से किसी ने पढ़ी नहीं. Then from one thing to another, M. Hemmel went on to talk about the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when
People are enslaved as long as they hold fast to the language. It is as if they have the key to the prison. Then he opened a grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it. All he seemed all he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. तो अब क्या हुआ? एम हेमल ने बोला, सारी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से सबसे ब्यूटीफुल जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है. क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि वो सबसे क्लियर लैंग्वेज है और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और हम लोग को कभी उसको भूलना नहीं चाहिए. अगर आप अब तुम्हारे कंट्री में जर्मन, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन पढ़ाई जाए तो भी हमेशा आपको अपनी लैंग्वेज से प्यार होना चाहिए. एंड उसने पहली बार अपना ग्रामर बुक खोली और एक लेसन पढ़ाना शुरू किया जो कि उसका लास्ट लेसन था. और उस दिन फ्रांस को लगा कि मुझे ग्रामर कितनी आसानी से समझ में आ रहा है, कितना इजी है. और उसको लगा अगर मैं पहले भी इतनी ही इंटरेस्ट से सुनता तो मुझे सारे लेसन्स कितने आराम से समझ में आ जाते. एंड उसको लगा कि आज एम हेमल ने भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ाया था. ऐसा लग रहा था कि जितना भी नॉलेज एम हेमल को है वो सारा उस लास्ट लेसन में उसने डालकर उन सबको वो लैंग्वेज एक साथ पढ़ा देना चाहता था. ऐसा पढ़ा था, ऐसी इतनी अच्छे से पढ़ा रहा था कि उस लेसन को वो कभी ना भूल सके. सी द वर्ड्स आर एट वन स्ट्रोक. एट वन स्ट्रोक मीन्स एक साथ ही उसने पूरा लेसन इतनी अच्छे से पढ़ाया कि जो भी उस लास्ट लेसन को सुनने के लिए उस क्लासरूम में बैठे थे उनको एक साथ वो लेसन बहुत अच्छी से समझ में आ गया. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. That day, M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand France. Alsace, France, Alsace. तो उसने उस दिन एम हेमल सबके लिए नई नई नोटबुक्स लाए थे, और उसके बाद उन्होंने उस नोटबुक्स में एक लेसन दिया, राइटिंग का लेसन. और इट वाज उस बुक के ऊपर उसने फ्रांस एल्सिस ऐसे लिख कर रखा था. इट वॉज अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, and nobody paid attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने राइटिंग का लेसन दिया, सारे बच्चे और जो बूढ़े बैठे थे, ओल्ड पीपल, सब लोग उस लेसन को, राइटिंग लेसन को अपनी बुक्स में लिखने लगे. एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी क्लास में. सब लोग चुपचाप जो वर्क दिया गया था उसको लिखने लगे, और सिर्फ जो पेन्स चल रहे थे पेपर पे उसी की आवाज़ आ रही थी. एक टाइम ऐसा हुआ कि 2-4 बीटल्स मीन्स मधुमक्खी टाइप के जो बीटल्स, आई थिंक यू नो व्हाट्स बीटल्स, जब वो क्लास के अंदर विंडो से आ गए तो भी किसी ने भी बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी बीटल्स की तरफ नहीं देखा. सब लोग जल्दी जल्दी लिख रहे थे. जो राइटिंग लेसन था, सब लोग को उस लेसन से, आज उसके लास्ट लेसन से उनको बहुत इंटरेस्ट था और उसको लिखने लगे. और इतनी शांति थी कि जो पिजन्स बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आवाज़ कर रहे थे रूफ पर, वो भी सुनाई पड़ रही थी. और उसको अचानक से एक थॉट आया फ्रांस को कि क्या ये पिजन्स को भी तुम फ्रेंच की जगह जर्मन्स सिखाने वाले हो, जर्मनी वाले? आर यू गोइंग टू मेक देम सिंग इन जर्मन? एक तरह का उसके दिमाग में ख्याल आया. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy! For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. जब भी वो फ्रांस अपने लिखते लिखते ऊपर देखता तो वो क्या देख रहा था? एम हेमल चुपचाप अपने चेयर में बैठे हुए थे. कभी कोई चीज़ देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ देख रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वो इस
इस नज़ारा जो उस क्लासरूम का नज़ारा है वो पूरा अपने दिमाग में कैद करना चाहते थे. ही वांटेड टू पुट इट इन हिज मेमोरी प्रॉपर्ली. एंड वो कभी गार्डन देखते और कभी क्लास देखते और कभी विंडो देखते. 40 साल से एम हेमल उस क्लास को पढ़ा रहे थे और अब उनका ऐसा टाइम आया था दैट ही हैड टू लीव द स्कूल एंड गो अवे. And only the desks and benches had been worn smooth. जो desks और benches थी 40 साल से वही benches और desks चल रहे थे तो उसको एकदम चिकने हो गए थे because of people coming in, writing and going. They had been worn smooth. Worn smooth में एकदम soft and एकदम like what you say, like stones, waterfall गिरने से जो sharp stones है वो rounded और smooth हो जाते हैं, ऐसे ही ये benches भी एकदम smooth हो गए थे. The walnut trees in the garden were taller and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. तो बाहर वॉलनट ट्रीज थी गार्डन में, वो अब थोड़ी सी लंबी हो गई थी और हॉप वाइन एक तरह की वेला है वो भी विंडोज़ के ऊपर से चढ़कर रूफ़ की तरफ जा रहा था. तो उसने जितना भी सुंदर कर सकता था क्लासरूम के बाहर का नज़ारा उतना उसने उसको सुंदर करने की कोशिश कर थी मिस्टर एम हेमल ने. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to leave his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो ऊपर रूफ़ के ऊपर एक रूम था, उसमें उसकी सिस्टर और एम हेमल दोनों रहते थे और सिस्टर वहाँ पर जल्दी जल्दी उनके ट्रंक्स मीन्स उनके सूटकेसेस, पुराने ज़माने में सूटकेस नहीं होते थे तो आयरन के ट्रंक्स होते थे, उसमें वो लोग अपना पैकिंग का सब सामान रख रहे थे, पैक कर रहे थे उसकी सिस्टर ऊपर. और उनको पता था कि नेक्स्ट डे दे मस्ट लीव द कंट्री एंड गो अवे. बट ही हैड द करेज to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bee, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. तो एट लास्ट लेसन ख़त्म होने आया राइटिंग का. उसके बाद एक हिस्ट्री का लेसन हुआ. सारे जो छोटे बच्चे थे उन्होंने वो हिस्ट्री का लेसन को चैंट किया, रिसाइट किया. और पीछे लास्ट बेंचेस में मिस्टर ओल्ड हॉसर, जो ओल्ड मैन था हॉसर, उसने अपने चश्मे पहने और अपने प्राइमर को अपने हाथ में पकड़ा. जो भी उसने लिखा था वो उसने पढ़ के पूरे क्लास को सुनाया. जब वो सुना रहा था उसकी वॉइस एकदम ट्रेम्बल हो रही थी क्योंकि उसको बहुत ही वॉज वेरी सैड एक्चुअली. एंड फ्रांस और जो दूसरे बच्चे थे उन लोग ने जब उसकी वॉइस सुनी वो ट्रेम्बलिंग आवाज़, तो उनको एक बार हंसी आई और दूसरी बार उनको रोना आया और उनको पता चल गया कि ये इनका लास्ट लेसन है. एंड एवरी वन वॉज रियली इमोशनल एक्चुअली, यू कैन से द हार्ट्स वेर हैवी. All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. M. Hemmel stood up, very pale in his chair. I never saw him looking so tall. My friend, said he. I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stood and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hands. School is dismissed. You may go. तो जब लास्ट लेसन हो गया और ओल्ड हॉसर ने पढ़ लिया सब कुछ और उसके बाद अचानक से जो चर्च था पास में उसके क्लॉक की आवाज़ आई और 12 बज गए उसके अंदर. और उसी टाइम पर जो प्रुशियंस थे वो लोग अपने ड्रिल, जो आर्मी प्रैक्टिस करते हैं, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे और वो वापस जाते जाते ट्रम्पेट्स ब्लो कर रहे थे. ट्रम्पेट्स एक तरह का एक बांसुरी टाइप का, एक यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ट्रम्पेट हियर. ओके, उसको ब्लो कर रहे थे और उसकी आवाज़ आ रही थी. और एम हेमल ने जब वो आवाज़ सुनी तब वो अपनी चेयर से ही स्टूड अप एंड फर्स्ट टाइम फ्रांस ने देखा कि वो कितना टॉल है और उसका मुंह एकदम पेल हो गया, उसके मुंह से सारा कलर चला गया एंड ही वॉज लुकिंग सो सैड एंड पूरा वाइट हो गया उसका फेस. और उसने बोला माय फ्रेंड्स, उसने बोलने की कोशिश करी माय फ्रेंड्स, पर वो उसके हार्ट इतना हैवी था और उसका गले में इतना भारीपन आ गया दैन ही वॉज सो इमोशनल कि वो कुछ भी नहीं बोल सके. तो वो बोलना बहुत सारी चीज़ चाहते थे पर ही वॉज एवरी वन वॉज सैड एंड ही वॉज ऑल्सो सैड. ऐसा लग रहा था कि अभी वो
सैडनेस उसके आईज से ओवरफ्लो होगी। उसने एक चौक ली और उसने बोर्ड पर जाकर लिखा विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसने वो लिखा बोर्ड पर और फिर टर्न हुआ, पूरे क्लास को देखा। उसको बोलना था क्लास अब ख़त्म हो गया टाइम, आप जाओ, पर वो बोल ना सका क्योंकि उस हार्ट वॉज फुल ऑफ हैवीनेस और उसका थ्रोट पूरा चोक हो गया था सैडनेस से। तो उसने अपने हाथ से इशारा किया कि आप सब लोग जा सकते हो, एंड द स्कूल वॉज डिसमिस्ड। सो हियर this is the end of the lesson, and when we come to the end of the lesson we come to know ki in this lesson the story here it deals actually with the theme of language imposition and language loyalty, and how people should love the language and they should learn the language and should be happy with what they have learnt. So we can say this emotion has been captured very beautifully by Alfonso Daudet in this lesson. The name is The Last Lesson. Thank you.